یزیدی ذہن کے گستاخ رابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دے۔ سامعین کرام، ہم لوگ آپ لوگوں کو ہمیشہ تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں پہ نظر رکھیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اس کی کتنی بھی آپ اصلاح کر لو، وہ ایسے دلدل میں جا کے پھنس جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اسی میں یہ ایک شخص ہے، یہ ہمارے ایک کرناٹک کے سی اے صاحب ہیں، انہوں نے بات کرائی اور آپ دیکھیں گے کہ اس کو اتنا سمجھایا گیا، اتنی دلیلیں دی گئی، لیکن یہ کس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج لوگ جو ہے ایسے دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ ان کو نہ محدث کی پرواہ ہے، نہ مجدد کی پرواہ ہے، نہ فقہا کی پرواہ ہے، نہ کسی چیز کی پرواہ ہے۔ بس وہ آج کے نام نہاد اہل حدیث کے مقلد بن کے بیٹھے ہیں۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، جو انہوں نے کہہ دیا غلط تو وہ غلط ہے۔ تو اب سنیے، دیکھیے، مجھے تو بہت افسوس ہوا اس شخص کے بارے میں، لیکن اس کو اتنا سمجھایا گیا، نہیں سمجھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن کیا کریں؟ ہمارا کام تھا حق پہنچا دینا، سمجھنا نہ سمجھنا آگے والے کی ذمہ داری ہے، سامنے والے کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی بھی شخص ایسے بد مذہب نہ بنے جلدی سے۔ باقی دعا میں یاد رکھیں اور اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں تک پہنچائیں۔ ہمیں خوب محبت کریں، خوب پیار دیں، خود دعا دیں تاکہ ہم اسی طریقے سے اپنا کام کرتے رہیں، وہاں بھی دیوبندیوں کا سامنا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہیلو وسیم ہلو، بھائی، ہیلو وسیم بھائی بات کر رہے ہیں؟ وسیم بھائی نہیں، عظیم بھائی بول رہے ہیں، ان کے بھائی۔ اچھا، کون بول رہے وسیم بھائی کا؟ آو ہلو، ہیں؟ ہاں، وسیم وسیم، بھائی، امجد، سید امجد بول رہا حضرت سے بات کرنے کے۔ میں نے تم نے پوسٹ بھیجے تھے نا، اس کا ہاں، رپلائی دینے کے واسطے بات تو اصلاح کر رہا ہوں ذرا حضرت بات کر رہا ہوں۔ ہاں، ہیلو، ہاں، میں السلام علیکم۔ میں کہہ رہا بھائی جان، یہ جو پوسٹ آپ نے بنا کے بھیجا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے مانگنا، ہاں، تو یہ جو آپ نے عقیدہ بنایا ہے تو اللہ کی عطا سے بنایا ہے یا ڈائریکٹ بنایا ہے، کہ جیسے ڈائریکٹ اس کو اللہ سمجھ کے مانگنا؟ مطلب بولے تو کیسا؟ مطلب کہ جیسے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہاں، ہمیں پتہ ہے کہ ذاتی مددگار اللہ ہے، ہاں، اور کسی اللہ کے ولی سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کا ان پر انعام ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے سورہ اچھا، تحریم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے مددگار ہیں اللہ، تمہارے مددگار ہیں ہوں، جبرائیل، نیک مومن صالحین ہوں، بندے، اور تمام فرشتے تمہاری مدد پر ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے ہاں، اپنے آپ کو مددگار بنایا، اس کے بعد صحیح بات ہے۔ حضرت جبرائیل کو بنایا، نیک مومن صالحین بندے کو بنایا، تمام فرشتوں کو مدد کے لیے مقرر کیا ہے۔ ہاں، اب حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بدبخت شخص دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل جا اس کی حاجت کو پورا کر دے، کیونکہ مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے۔ ہوں، اور کوئی نیک شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل سے کہتا ہے جبریل اس کی حاجت کو پورا مت کرنا، مجھے اس کی آواز پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل اچھا، علیہ السلام کو کہا کہ اس کی حاجت کو پورا کر دے، اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو مددگار بنایا ہے۔ تو اب آپ نے جو یہ پوسٹ بھیجی ہے کہ اللہ کے علاوہ، تو اللہ کے علاوہ ہوں، کیا معبود سمجھ کے مانگنا، یہ تو شرک ہے۔ ہوں، اب اللہ کا نیک حضرت بندہ میرے کو سمجھ کے مانگنا، یہ تو اچھا، مجھے تمام ایک بات بولو محدثین، حضرت۔ سنیے میری بات، یہ قرآن اور حدیث کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ آپ تک کیسے پہنچا یہ؟ مجھے ایک بات بتاؤ، تو وہ کون سی دعا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائی یا قرآن میں آئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے دعا مانگی جائے؟ ہاں، اللہ کے رسول نے خود، بخاری کی حدیث ہے، میں بھیج رہا ہوں آپ کو، اللہ کے رسول نے ہوں، فرمایا کہ ہر انبیاء کا کوئی نہ کوئی مددگار تھا، اور میرا مددگار جبرائیل ہے۔ ہوں، ہوں،
तो मेरा मैं ये मददगार बोल रहा जिब्राइल। अब अभी। सुनिए ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाबीना शख्स उनके पास आया और कहा कि या रसूलल्लाह, मेरी आंखों की रोशनी आ जाए, अल्लाह से मेरे लिए वसीला तलब करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इससे बेहतर है कि तू दुआ ना करवा, ये तेरे लिए बेहतर है। कहा नहीं, मुझे दुआ करवा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ वजू करो, वजू करके 2 रकात नफिल पढ़ो और पढ़ के अल्लाह से ये दुआ करो कि ए अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से दुआ करता हूँ, मेरी आंखों की रोशनी अता फरमा। तो उनकी आंखों की रोशनी आ गई। तो ये दुआ अल्लाह के रसूल ने सिखाई, तो ये सिर्फ खास थी या आम थी? बात सही है, खास बिल्कुल नहीं थी सही ना, हदीस है। आम थी ना, नहीं, तो हाँ, खास आम थी। आम है, समझ लो, सही बात है। हाँ, तो अब जैसे लेकिन सुनिए ना भाई, बात सुनिए अब ना। मेरा ये सवाल है, वो वसीले को मैं भी मानता कि अल्लाह के रसूल का वसीले से अगर दुआ की जाए तो बिल्कुल जायज है, मैं इस चीज को मानता। हम्म तो अब मुझे एक सवाल का जवाब दो कि अल्लाह के रसूल की वो कौन सी हदीस है, वो कुरान में वो कौन सी आयत है जिसमें बताई गई है कि तुम जिब्रील से दुआ मांगो, नबियों से मांगो, वलियों से मांगो? डायरेक्ट जैसे कुरान में आयत है कि अल्लाह के किसी रसूल को औलाद सल्लल्लाहु नहीं दी तो ताला अलैहि अल्लाह वसल्लम, से दुआ मांगे। सुनिए ना भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवा अफरोज हैं और पानी खत्म हो गया। सहाबा इकराम हुजूर की बारगाह में आए कि या रसूलल्लाह, पानी खत्म हो गया, इतना पानी भी नहीं है कि उंगली के पोड़े भीग जाएं। और सहाबी की तादाद थी 10,000 से ज्यादा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक काम करो, जितना पानी तुम्हारे पास है सब लेके आओ और उसको एक मशकीजे को उल्टो। और हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक डाला, हुजूर की उंगली के चश्मे से पानी निकला। तमाम सहाबा सही ने बात। पिया, सैराब हुए। तो ये हुजूर से पानी क्यों मांगा सहाबा ने? तो आप साहब उस टाइम अभी तो आपने हुजूर उस टाइम और इस टाइम मत करिए। अभी आपने कहा कि हमें एक हदीस बताइए कि सहाबा ने मांगा हो हुजूर से डायरेक्ट, तो हुजूर ने सहाबा से पानी मांगा, सहाबा ने हुजूर से पानी मांगा, ठीक है। अब ये बताइए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा अफरोज है। आज की तारीख में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप क्या समझते हैं? मुर्दा समझते हैं? मुझे एक बात बताओ आज की कि तारीख में आप नबी को क्या समझते हैं? साहबा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा कर गए हाँ तो उसके बाद भी तो साहबा जिंदा हुए ना, हाँ, तो आपने हदीस नहीं साहबा पढ़ी? थे कि नहीं? मुसन्नफ तो इब्ने अबी एक शैबा की हदीस हदीस कौन, सुनिए ना भाई। क्या है इसमें से? मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की हदीस सुनिए कि एक सहाबी रसूल हुजूर की कब्र मुबारक पे गए और कहा या रसूल अल्लाह, बारिश नहीं हो रही है, उम्मत हलाक हो रही है, अल्लाह से बारिश तलब कीजिए हमारे लिए। ज़ईफ़ अल्लाह, हदीस है, घड़ी हुई है, अगर ये कोई घड़ी हुई माइका हदीस है। लाल इस हदीस को ज़ईफ साबित कर दे, 1 लाख का इनाम। मैं बोल कोई रहा हूँ ना, माइका घड़ी हुई, लाल मैंने तुम्हारे तहकीक कहने से किया है नहीं। इसकी। कौन सा रावी ज़ईफ आर्टिकल है मैं इसमें? भेजता हूँ आपकी, उसमें एक रावी मुदल्लिस है। क्या नाम है उसका? क्या जो नाम है? अंश रिवायत करता, क्या नाम है उसका? मैंने लिखा है, सब स्टडी करिए इसके ऊपर। सुनिए मेरी बात, मुदल्लिस जो अंश रिवायत करता, मेरी बात सुनिए। उसकी हदीस नहीं ली जाती। सुनिए, इसमें कोई ऐसा रावी नहीं जो अंश से रिवायत कर रहा है, कोई हाँ, ऐसा रावी नहीं है। वहाबी की किताब नहीं चलेगी। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा ने नहीं, इस ऐसा हदीस नहीं को ना, सही वो कहा जो है। है, एक मिनट, जो ये हदीस लेके आया मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, उसने इस हदीस को ज़ईफ कहा है। ज़ईफ कहा है, उन्होंने तो सही कहा है, सही देखो सनद से लिखा है। इसको और ज़ईफ़ इसी मानने हदीस की को दो वजूहत है। सुनिए ना, इसी हदीस को इब्ने कसीर अल विदाया वल निहाया में लेके आया और इस हदीस पे बहस करते हुए कहता है ये हदीस सनद में सही है, और इब्ने कसीर कहता है कि मेरा खुद अमल है इस पर। देखो जो हदीस पर बहस हो, हाँ, सही और बहस ज़ईफ़ की की, मतलब तो नहीं है। उसको एक मिनट नहीं, उसको अकीदा आपकी कैसे बात बनाया जाए, पहली बात। आपकी बात और नहीं दूसरी चलेगी बात, ना, नहीं सुनो, आपकी मेरे बात नहीं 2 चलेगी मिनट ना। सुनो। और दूसरी बात सुनो, पहली बात ये जो जिस पर बहस है, और दूसरी बात ये कि वही हदीस है बुखारी में और मुस्लिम में, हाँ और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की दौर की, हाँ, उसमें सही हदीस है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उस टाइम जब कैद पड़ गया तो अभी उमर मैं रज़ी सुना अल्लाह रहा तआला हूँ। ने अब दुआ की। इसमें आप फंस गए। अब हजरत इब्न अब्बास को सुनिए लेके गए साथ में, सुनिए, आप ये फंस सही गए, हदीस है, आप तो फंस ये गए। सही हदीस अब उससे आप इसमें टकराती। फंस गए, अब आप इसमें फंस गए। अब सुनिए, ये हदीस जो हाँ, आपने बोलो। बताई ना, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1010, जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कहत तारी हुआ, हम्म, तो हजरत उमर हाँ, फारूक ने साहबा से कहा कि हजरत अब्बास का वसीला पकड़ो, और हजरत अब्बास से बारिश के लिए दुआ की। तो हजरत अब्बास ने बारिश के लिए दुआ की और खूब बारिश हुई, है ना, निकाला था। है ना। हाँ, अब सुनिए, हाँ,
अब आप सुनिए, इसकी शरह सुनिए, बुखारी शरीफ की शरह उस फतहुल दौर में बारी। ये हुआ था। सुनिए ना भाई, शरह सुनिए ना इसकी। हाँ फतहुल बारी, शरह बुखारी, इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शरह भी लिखी है। शरह पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी? आप सुनिए इसकी अरे शरह, हजरत शरह हजरत पढ़ी है, शरह शरह हजरत सुनिए, शरह सुनिए, हजरत हजरत सुनिए ना, रुकिए अरबी ना नहीं भाई, आता हमको। रुकिए ना, इसकी शरह सुनिए, शरह है मेरे पास लिखी हुई इसकी, बराबर बोलता सुनिए हूँ, ना है भाई, इसकी। सुनिए ना भाई, शरह सुनिए ना। हजरत हाँ अब्बास का वसीला क्यों पकड़ा गया? क्योंकि हजरत अब्बास का वसीला इसलिए पकड़ा गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास को अपने वालिद के दर्जे पे रखते थे। तो हजरत अब्बास का वसीला हुजूर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से हजरत उमर ने कहा कि हमसे कुछ छूट रहा है, कुछ हुजूर की सुन्नत छूट रही है। तो हुजूर की सुन्नत पकड़ी, वसीला पकड़ा। क्यों? क्योंकि अगर हजरत उमर चाहते तो अपना वसीला भी ले सकते थे, क्योंकि आप अशरा मुबशरा में से थे और हजरत अब्बास अशरा मुबशरा में से नहीं थे। हजरत अली भी मौजूद थे, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद थे, अहले बैत भी मौजूद थी, लेकिन हुजूर की सुन्नत पर अमल करना था, इसीलिए हजरत अब्बास का वसीला पकड़ा। अब सुनिए, हजरत अब्बास ने दुआ क्या की थी? जब उनके पास सहाबी पहुंचे तो हजरत अब्बास ने दुआ कैसे की थी? जब बारिश हुई थी कैसे दुआ की थी? वही अल्लाह से दुआ की थी ना, क्या क्या बोला था उसमें दुआ में? अल्लाह से दुआ की कि तब हजरत बारिश हो। अब्बास, हजरत अरे यार सुनिए ना, आपको बस लॉलीपॉप चटा दिया जाता है, शरह नहीं पढ़ाई जाती है। नहीं, बोलो ना, बोलो ना, हजरत बोलो, हाँ, उमर बोलो, बोलो, फारूक, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, ये मुझे तेरी बारगाह में वसीला बना के लाए हैं और मैं तेरी बारगाह में नबी अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करता हूँ। खूब बारिश हुई, मेरी लाज रख और बारिश अता फरमा। हाँ। तो बारिश हुई। तो देखो, हाँ, अब आपको जो जो बोलना है 5 मिनट बोलो, फिर मैं बोलता तो हूँ। हजरत और कुछ अब्बास बोलना ने है? क्या बोला कि अल्लाह ये मुझे तेरी बारगाह में लेके आए बैलेंस वसीला ऊपर। बना के, और मैं तेरी बारगाह हाँ में हुजूर अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करता हूँ। हाँ ठीक है, और मेरी हाँ, लाज रख और बारिश अता फरमा, और खूब बारिश हुई। सही बात है। आप दूसरी हदीस सुन लीजिए, आप आप दूसरी हदीस हाकिम अल मुस्तदरक की हदीस सुन लीजिए आप। ये अल मौजबुल कबीर और अल मौजबुल औसत, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह हदीस, इस हदीस को लेकर के यही आए है। कि जब हजरत अली करमुल्लाहु वजुल करीम की वालदा का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने बैठे और कहा कि ऐ मेरी वालदा, तुमने मुझे खिलाया पिलाया, मुझे पाला, बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह के जिम्मे है। उसके बाद कब्र खुदवाई गई, हजरत फातिमा बिनते असद को उसमें रखा गया। अल्लाह के रसूल पहले उसमें खुद लेटे, फिर कब्र में रखा गया और अल्लाह के रसूल ने मदफन किया और दुआ की अल्लाह से कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से दुआ करता हूँ, इनकी कब्र को नूर से मामूर कर दे, तुझे मेरा वसीला और मुझसे पहले जितने अंबिया गुजरे उनका वसीला। ये आप अगर इसको पढ़ें, अल मौजबुल कबीर और अल मौजबुल औसत, इमाम तबरानी इस हदीस को लेकर के आए और इस हदीस को सही कहा। ठीक है, आपका हो गया बोलना भी। 5 मिनट मुझे दे सकते? आपने बुखारी की हदीस तो बोली, हजरत मैंने उसकी शरह पढ़ी, अब शरह पे क्या सुनो बोलेंगे ना, आप? मैं भी बोल रहा ना, सुनो, मैं भी बोल रहा। देखो, वसीले से दुआ मांग सकते। तो अभी किसी आपने फिर को- वसीले की हदीस को क्यों छेड़ा? नहीं, जब नहीं, वसीले से दुआ मांग सकते हैं सुनो, तो? नहीं 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 नहीं, वसीले, देखो तो बात फिर समझो। आपने वसीले को अल्लाह क्यों के छेड़ा? रसूल को मैं यहाँ से अगर बोलूँ कि मैं अल्लाह के रसूल से मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये वो जायज है, सुनिए, लेकिन मुसन्नफ डायरेक्ट इब्ने, मांगने वाली हदीस बताओ। मैं बता तो मुझे रहा हूँ, एक हुजूर डायरेक्ट मांगने वाली हदीस अलैहिस्सलाम, बताओ जो अरे अल्लाह यार के आपको रसूल से बताई तो मांगी सही, गई हो, एक उनके मिनट, चाचा से मांगी गई हो, डायरेक्ट। चले चले ठीक है, ये अल्लाह बताइए, से नहीं मांगी गई हो, उनसे मांगी बताइए गई हो। बताइए बताइए, हाँ, ये कुरान मुझे करीम, एक हदीस बताओ, कुरान की एक आयत बताओ जिसमें अरे डायरेक्ट बोलने मांगे गए हो, दोगे, डायरेक्ट। बोलने दोगे, बोलने हाँ दोगे, मैं बोलूँ अब? हाँ, हाँ, बोलो। सूरह निसा आयत नंबर 64, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद हाँ। फरमाता है, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ और मेरा नबी तुम्हारे हक में दुआ कर दे, शफात कर दे, तो बेशक तुम अल्लाह को बख्शने वाला पाओगे। किससे दुआ करे? अल्लाह के मेरा रसूल नबी से। किससे दुआ करे? मेरा नबी तुम्हारे मेरा हक नबी किससे दुआ में, करे? मेरा नबी तुम्हारे हाँ। हक में शफात तुम्हारे हक मुझसे में मांगे। किससे दुआ करे? अरे हम तो किससे? अजीब अल्लाह से आदमी हो, मांगे ना। तुमने क्या बोला तो कि फिर ये डायरेक्ट भी हुजूर तुम्हारे से? पास काम की नहीं रही। एक मिनट सुनो, आप या तो जाहिल हो या समझना नहीं चाह रहे हो। मैं हुजूर के पास डायरेक्ट गया, मैंने कहा या रसूलुल्लाह, मैंने अपनी जानों पे जुल्म किया, मेरे हक में दुआ करें। अल्लाह तो के ये सही रसूल ना, ने मेरे वसीला लिए ना, ये शफात बात पेश सही करी। है। वसीला कहाँ है? ये तो हुजूर के पास डायरेक्ट जा रहा हूँ मैं। तो मुझे वसीला कहाँ वही से आ गया? ये बताओ डायरेक्ट। वसीला कहाँ से आ गया इसमें? हुजूर के पास खुद अल्लाह भेज रहा है कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो, यानी गुनाह कबीरा करो, तो मेरी नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ और मेरा नबी अगर तुम्हारे हाँ। हक में शफात कबूल करे तो बेशक तुम अल्लाह को बख्शने वाला पाओगे।
अब इसकी तो हदीस इससे ये रिजल्ट निकलता। इस आयत की शरह तो सुन लो बाबू, इस आयत की तफसीर सुनो। सूरह निसा आयत नंबर 64, तफसीर इब्ने कसीर खोल लो, तफसीर जलालेन खोलो, जो मर्जी चाहे वो खोल लो। इस आयत की तफसीर में एक हदीस कोट करते हैं इब्ने कसीर, कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक अरबी आया हुजूर की वफात के बाद, और उनकी कब्र मुबारक के सामने बैठा और उनकी कब्र मुबारक की मिट्टी अपने सर पे रखी और कहा कि मैं अपनी जानों पे जुल्म कर बैठा हूँ, और इस आयत को पढ़ा, मैं अपनी जानों पे जुल्म कर बैठा हूँ, तो या रसूलल्लाह मेरे लिए शफात तलब करें। तो अल्लाह के रसूल की कब्र से निदा आई कि जा तेरी शफात हो गई। हाँ, ज़ईफ़ हदीस है, गड़ी हुई। ला हौल बिला अब कुव्वत, ज़ईफ़ अल्लाह पे की चल जाते लानत हैं। हो। अरबी आती नहीं हजरत, ला हजरत हौल सुनो, बिला अरबी कुव्वत। आती नहीं, अरबी एक में मिनट पूछो एक इसको। मिनट इस हदीस हजरत अरबी में पूछो। इस हमारे हदीस पास में सही कौन सी हदीस की कोई दलील नहीं। इस हदीस में किसने इसको ज़ईफ़ बोला, उस रावी को पेश करो, उसमें कौन हाँ, सा उसका रावी रावी ज़ईफ़ का है? नाम पूछो अरबी में, अरबी में हाँ, पूछो चलो। हजरत। हाँ अरबी में कौन सा बताओ रावी इसमें रसूलल्लाह। ज़ईफ़ है, बताओ देखो एक बात मुझे बोलो, बताओ। वो आज का जो मुल्ला लेकिन है, एक मिनट रुक जाओ, आज का मुल्ला जो है वो कहता है कि ज़ईफ़ मान लो, और इब्ने कसीर, इमाम जलालुद्दीन स्वीती, इमाम हजर, इमाम बहकी, इमाम तस्कलानी, इमाम ज़ैबी इस हदीस को सही कह रहे हैं, तो तुम उसकी मानोगे या आज के मुल्ला की मानोगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, किसकी बात को तुम मानोगे? मुझे एक सुनो। मैंने क्या पूछा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी। आज की तारीख में अगर कोई शख्स ये कहे कि ये हदीस ज़ईफ़ है, तो मुझे बताओ कि शरीयत 4 चीजों पर है, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। तो इजमा कहती है, इजमा में कौन कौन है वो सुन लीजिए। इजमा में इमाम इब्ने कसीर है, ठीक है, जिसने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। कुरान की तफसीर इब्ने कसीर, सबसे पहली तफसीर इब्ने अब्बास के बाद वही है। मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक, अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह कौन है? इमाम बुखारी के उस्ताद। उसके बाद आइए इमाम जलालुद्दीन स्वीती, जिन्होंने तफसीर लिखी, तफसीर दुर्र मंसूर और तफसीर जलालैन। इमाम बहकी, इमाम बैज़ावी, इमाम तस्कलानी, इमाम इब्ने हाफिज इब्ने क्या कहते हैं यासिर, इमाम अल्लामा अल्फसानी, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, इमाम ज़ैबी, इमाम सही इब्ने खुजैमा। ये सारे जो इमाम है, बड़े बड़े फिक़ा के बड़े बड़े जो इमाम हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, तफसीर लिखी है, और बुखारी की हदीस से पहले हदीस इन्होंने लिखी है, मुस्लिम की हदीस से पहले इन्होंने मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक हदीसें लिखी है। जब ये सब कह रहे हैं ये सही है, और आज का मुल्ला 4x4 के कमरे में बैठ के कहता है ये ज़ईफ़ है, किसकी बात को मानेंगे? मुझे एक बात बताओ, मैं किसकी बात को मानेंगे वो बताओ। अरे क्या दिया मैंने तुमको? अजीब आदमी हो, ये क्या मैंने दिया? उम्मत का इजमा है, सुनो। तो हाँ, उम्मत का इजमा किस पर होता है? है कि भैया हदीस सही है। उम्मत का ऐसी इजमा कोई नहीं दलील होता। है कि नहीं वाज़ेह? सुनो, जाहिल हो आप। उम्मत का इजमा नहीं होता, मुहद्दिस का इजमा होता है। हाँ, तो मुहद्दिस का ही ना। हाँ, तो मुहद्दिस का इजमा बताया तो तुमको मैंने। तो मैंने मुहद्दिस को फॉलो करते ना। ला हौल वला कुव्वत। मैंने तुमको क्या बताया अभी? इमाम हजर, इमाम जलालुद्दीन सीती, इमाम मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक, इमाम बैज़ावी, इमाम ज़ैबी, इमाम सही इब्ने खुजैमा, इमाम बहकी, इमाम क्या कहते हैं इब्ने कसीर, ये बड़े बड़े मुहद्दिस नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, ये मुहद्दिस है या नहीं? ये मुहद्दिस है या नहीं? मुहद्दिस है या नहीं? ये मैं वही बोल रहा। तो ये मुहद्दिस है या नहीं? बहुत से लोगों ने मुहद्दिस है या नहीं? मेरी बात मुहद्दिस है या नहीं ये बताओ मुझे। उसको देखो, 2 मिनट सुनो। बहुत से लोगों ने सही करार दी और बहुत से लोगों ने ज़ईफ़ करार दी। अरे एक ने भी सही करार नहीं दिया। अगर तुमने दिखा दिया, सुनो, तुमने अगर दिखा दिया इस हदीस को किसी ने भी ज़ईफ़ कहा हो, खुदा की कसम तुम्हारी गुलामी करूंगा। और इस हदीस को मैं सुनो, इस हदीस को मैं तुम्हारे पास पूरा भरपूर इजमा दूंगा कि ये हदीस सही है। अगर सही नहीं होती तो तमाम तफसीर में इस हदीस को नकल नहीं किया जाता। ज़ईफ़ हदीस कभी भी नकल नहीं होती। इतने बड़े तो तुम जाहिल हो। इमाम मुस्लिम अगर कोई ज़ईफ़, सुनो, इमाम तिरमिज़ी कोई ज़ईफ़ हदीस लाए तो क्या इमाम तिरमिज़ी के बाद जो नीचे मुसन्नफ इब्ने क्या नाम है क्या कहते हैं जो मुहद्दिस की जमात है, इमाम तिरमिज़ी के बाद क्या उस हदीस को लिखा उन्होंने सही कहा? कभी नहीं कहा। तो हदीस सही है। आप इधर सुनो, मुझे इसकी अरबी मतन पढ़ के बताओ और ये बताओ उसमें कौन सा रावी ज़ईफ़ है। चलो पढ़ो। मुझे एक बात सुनो। तुम्हारी एक बात गई तेल लेने। सुनो, तुम्हारी एक बात गई तेल लेने। इस हदीस की अरबी पढ़ो, इस हदीस की अरबी पढ़ो।
इस हदीस को मेरे को सेंड करो। मैं क्यों सेंड करूं? तुम तो अभी कह रहे हो कि तुम्हारे पास लिस्ट है, मैं क्यों सेंड करूं? तुम तो कह रहे हो मेरे पास लिस्ट है। तो मुझे तो मालूम पड़े ना, मुझे जाहिल की जहालत को दूर करो आप। अजीब आदमी हो यार, अजीब आदमी हो। को दूर करो। अच्छा ये बताओ, अरे भाई मेरे पास बहुत बड़ा मटेरियल है, मुझे तुम सादा मत समझा हजरत। अच्छा सुनो अभी एक मिनट रुको। एक तुम्हारे पास मटेरियल है, तो वो मटेरियल अरबी में है उर्दू में? हिंदी हजरत। अच्छा हिंदी में है। वो किसने दिया तुमको लिख के? किसने दिया तुमको लिख के वो मटेरियल? तुमको ओस्मो रिजाल के बारे में पता है? तुमको ओस्मो रिजाल के बारे में पता है, हाँ या ना बताओ? शायद नहीं, आपने शायद सही कहा होगा। तो आप एक काम करो हजरत, वो जो हदीस है ना, वो हदीस मुझे सेंड कर दो। मैं शायद उनसे गलती पे हुआ तो वो चेक करता मैं पूरा। मुझे अरे अच्छा एक मिनट, तुम कैसे चेक करोगे? ओस्मो रिजाल तुमको मालूम है? मैं क्या बोल रहा? मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमको जब ओस्मो रिजाल किससे चेक कराओगे? किससे चेक कराओगे? आपने जो बोले ना, किससे चेक कराओगे? किससे चेक कराओगे यार? किससे चेक कराओगे? वो मैं करूंगा ना। जैसे तुम कैसे करोगे? आप अच्छा एक बात बताओ, रुको एक बात बताओ, तुम नहाते हो, गुस्ल करते हो? हाँ करता हूँ। गुस्ल में कितने फर्ज और कितने वाजिब हैं? मैं क्या बोल रहा है? गुस्ल में कितने फर्ज और कितने वाजिब हैं? सिखाओ। गुस्ल में कितने फर्ज है? गुस्ल में कितने फर्ज है? ए आदमी सुनो, गुस्ल में कितने फर्ज है? मेरे को इतनी मेहरबानी करो। गुस्ल में कितने फर्ज है? खाली तुम फर्ज बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम चेक कर लोगे। खाली फर्ज बता दो एक बार। गुस्ल में कितने फर्ज है? 3 फर्ज है गुस्ल में। नाक में पानी डालना, गुल्ली गरारा करना, और बदन पर एक भी हिस्सा बाल के बराबर सुखाना। वाजिब कितने हैं? वाजिब कितने हैं? मैं क्या बोल रहा? सुन्नत कितनी है? लिस्ट में बताओ। एक मिनट रुको। नाक में पानी, आपने नाक में पानी डालने के लिए बोला, ये गलत है। नाक की नरम हड्डी को गीला करना, नरम हिस्से तक पानी डालना, और कुल्ली करना नहीं है, कुल्ली करना नहीं, हलक तक गरारा करना, नाक पूरे जिस्म पे पानी डालना। अब इसमें वाजिब कितने हैं? एक भी बाल बराबर न सूखे। इसमें वाजिब कितने हैं? तुम हदीस भेजो हजरत मेरे को। बस हो गई, हालत खराब है। तुमको गुस्ल का तरीका नहीं मालूम है, तुम हदीस की रस्म रिजाल को चेक करोगे? सुनो। मैं क्यों तुमको कभी, तुमने बोला मेरे पास लिस्ट है पूरी इस हदीस की, मैं तुमको क्यों सेंड करूं भाई? तुम भेजो ना, सही बात है हजरत, सही बात बोल रहे तुम बराबर। तुमने कहा कि मेरे पास पूरी लिस्ट है इसकी, तुमने खुद बोला अभी। तो ये हदीस तुमने अगर सुनी है, तुम्हारे लिए ज़ईफ है, तो मुझे ये बताओ, अगर ये तुम्हारे नजर में ज़ईफ है, या तो तुम जाहिल हो, या इतने बड़े मुहद्दिस ने जो सही कहा वो जाहिल है। कौन जाहिल है दोनों में से? माज़अल्लाह। अच्छा ठीक है, फिर कौन जाहिल? पहले एक फैसला करो, सुनो, पहले एक फैसला करो, सुनो, पहले एक फैसला करो। है तो उसको इस हदीस के बारे में होना चाहिए, सुनो, इस हदीस के बारे में होना चाहिए, क्योंकि इसके एक ही रावी हैं, वो है हजरत अली, ना ही इसका कोई दूसरा रावी है। इतने बड़े तो तुम घामर हो, तुम कहते हो तुमने चेक किया है। कौन सा रावी इसके अंदर हजरत अली के अलावा जो तुमने चेक कर लिया? मैं क्या बोल रहा था? तुम्हारे बोलने से क्या होता है? सफा नंबर, पेज नंबर, अबे हदीस नंबर शेयर करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान की आयत सूरह निसा आयत नंबर 64 की तफसीर है ये। सफा नंबर पेज नंबर कहाँ से लाके दूंगा तुमको मैं? सूरह निसा आयत नंबर 64 की तफसीर है ये आयत। अच्छा आप मुझे बताओ, तुम चलो वो छोड़ो, तुम तफसीर को अभी साइड करो। ये बताओ, ये आयत है कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, यानी गुनाह कबीरा कर बैठो, तो मेरे हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाओ। तो अब तुम अपनी जान पे जुल्म कर बैठे, यानी गुनाह कबीरा कर बैठे, तो तुम क्या करोगे बताओ? इस आयत पर कैसे अमल करोगे? मैं क्या बोल रहा था? वो जो हदीस जो तुमने मैं कह रहा हूँ, अभी तुम हदीस को साइड रखो, अभी तुम हदीस को साइड रखो। तुमने अपनी जान पे जुल्म किया, गुनाह कबीरा कर लिया, तो अब तुम क्या करोगे? अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरे नबी की बारगाह में जाओ, तुम क्या करोगे? क्या करोगे? अल्लाह की मानोगे नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, इसलिए तो कहा वहाबी सहाबी को नहीं मानता, वहाबी को मानता है। वहाबी की अकल घुटनों में है, इसीलिए कहता हूँ सहाबी वाले बनो, वहाबी वाले ना बनो। और तुमने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की जो हदीस के बारे में बताया ना कि वो ज़ईफ है, 1 लाख का इनाम दूंगा, और उसमें वही रावी हैं जितने रावी उसके अंदर हैं, वही रावी सही बुखारी के अंदर 4 जगह पर मौजूद है सही हदीस में। अगर किसी अहले हदीस की माँ ने हलाली बच्चा पैदा किया है ना, तो मुझसे इस हदीस पर बात कर ले, अस्मो रिजाल पर। अगर ज़ईफ साबित कर दी ना तो 1 लाख का इनाम दूंगा कैश, और ना साबित कर पाए तो 4 जूते लगाऊंगा। सही बात है। जो रावी इस हदीस के अंदर है ना, सुनिए, जो रावी इस हदीस के अंदर है ना मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के, वो सारे रावी A to Z सारे रावी सही बुखारी में, इमाम बुखारी उसको सही बुखारी में लेकर के आया। तुम तो उसको सही कहते हो, सारी हदीसों को बुखारी की।
सही बुखारी ठीक है, की एक काम हदीस। करेंगे अब सुनो सुनो तो सुनो सुनो, अब मैं बता देता हूँ। जो वहाबी एतराज करते हैं ना, अबू स्वाले और अबू मूसा, ठीक है ना, इसके अंदर जो दो रावी हैं, मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाइए, सब्र करिए, सब्र करिए। हामिश और अबू स्वाले, एक मिनट रुक जाओ, आपको बता देता हूँ मैं। इस पर ना पीएचडी करके बैठे हुए हम लोग। बोल या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। देखो, एक रावी है इसमें हामिश और अबू स्वाले, इस दो रावी को अहले हदीस ज़ईफ बताएंगे तुम्हें। अब उनसे तुम ये पूछना कि ये हामिश और अबू स्वाले की ये दो रावी सही बुखारी में, तो सही बुखारी को भी अगर तुम्हारे अंदर दमखम है तो ज़ईफ बोलोगे? ये बताओ, बोलो जल्दी। तो ये दो रावी को वो ज़ईफ क्यों बताते हैं इस तरह? इसलिए बताते हैं ना, क्योंकि ये हदीस उनके उसूल के खिलाफ है, उनको किसी ना किसी में तो बहाना चाहिए। तो आप उनसे ये पूछना अहले हदीस से कि इस हदीस में काहे कौन की सा जावी? रावी है जो ज़ईफ है, वो आपको बताएंगे अबू स्वाले और हामिश। तो अबू स्वाले और हामिश को अगर वो ज़ईफ बताए ना, तो उनका कॉलर पकड़ के सही बुखारी की मैं आपको दो हदीसें देता हूँ, उसमें अबू स्वाले और हामिश हैं। कहना ये जो दो रावी इसके अंदर, इसी के अंदर ये सेम दो रावी हैं, तो इस हदीस को ज़ईफ बोलना जरा। नहीं बोलेगा, फिर तुमको दूसरा उसूल समझाएगा। वो इसलिए दूसरा उसूल समझाएगा क्योंकि ये हदीस उनके अकीदे के खिलाफ है। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का पखाना चाट करके उन्होंने अपने दीन को आगे बढ़ाया है। तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के नजदीक ये हदीस उनका जो अकीदा है वो टकराता है, तो इस हदीस को वो छोड़ देंगे। अब मुझे दूसरी बात ये बताओ कि हजरत अली से साहबा ने फरमाया, साहबा की जमात ने, जमात का मतलब है जमा, जमा से मतलब 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। तो वो सहाबी रसूल हजरत अली से फरमाते हैं कि ए अली, हम बहुत सी हदीसों को छुपा लेते हैं, हमने उस हदीस को बयान ही नहीं किया। तो हजरत अली ने पूछा क्यों? कि इसलिए नहीं किया क्योंकि हम वो सारी हदीसें भूल गए हैं, और हुजूर की वो हदीस है जिसने जानबूझकर मेरी तरफ झूठ मंसूब किया तो अपना ठिकाना जहन्नम करे। तो हुजूर की बहुत सारी हदीस तो हम तक पहुंची नहीं, और जब पहुंची नहीं तो फिर हमको इजमा पे चलना पड़ेगा। तो इजमा जब जिस हदीस को सही कह रहा है, इजमा जो उस अकीदे को सही कह रहा है, इजमा का वो मौक़िफ़ है। इमाम बुखारी की आंखें चली गई थी, तुम बुखारी बुखारी चिल्लाते हो, इमाम बुखारी की आंखें चली गई, तो इमाम बुखारी के वालदा ने अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह मेरे बेटे की आंखों की दिनाई अता फरमा। ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा कि तूने अपने बेटे के हक में जो दुआ की है, तो मैंने अल्लाह से वो दुआ कबूल करवा ली है और तेरे बेटे की आंखों की रोशनी अता कर दी है। सुबह जैसी उनकी वालदा उठी तो इमाम बुखारी की आंख ठीक हो गई। अगर इमाम बुखारी सुभान की आंख अल्लाह, ठीक सुभान नहीं अल्लाह, होती तो इमाम बुखारी बुखारी कैसे लिखते? सुभान अल्लाह, सही बात। तो इस अकीदे को छोड़ तो दोगे क्या? इमाम बुखारी की बुखारी ले लोगे और इस अकीदे को छोड़ दोगे? है कड़वा कड़वा थू थू मीठा नहीं, मीठा हफ हफ। हाँ तो ये हदीस हाँ, कहाँ लिखी हुई है हजरत? ये भी ये हाकिम मतलब उनकी इमाम बुखारी हाकिम के हवाले। सुनो, ये हदीस इमाम बुखारी की जो दूसरी किताब है, एक मिनट, नाम क्या है, नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें लिखी हुई है अदब अल मुफरद। इमाम बुखारी ने कितनी किताबें मुझे लिखी है? मुझे एक बात बताओ हजरत, इमाम बुखारी जैसे ने कि कितनी कुरान किताबें में लिखी है? इमाम बुखारी ने कितनी किताबें लिखी हैं? नहीं पता, नहीं मुझे। नहीं पता। अदब अल मुफरद इमाम बुखारी की है। बुखारी शरीफ में इमाम जी। बुखारी ने फरमाया कि मुझे 1,00,000 हदीसें याद हैं सनद और मतन के, लेकिन इमाम बुखारी ने सिर्फ तुमको 7,000 हदीसें दी और 90,300 हदीसों को छुपाया इमाम बुखारी ने। तो सही सारी हदीस तो तुम तक पहुंची नहीं। तो हजरत मुझे एक बात बताओ, हाँ, वो ऐसी सही साफ और वाज़ेह कोई हदीस नहीं है जिसमें अरे तो वाज़ेह हो जाए तुमको कि दी, इनसे अरे मदद तो मांग तुमको सकते? तुमको दी तो सही, कुरान की आयत भी दी। अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, कि तुम्हारे मददगार हैं अल्लाह, ये अपने आप को जाती रखा अल्लाह ने।
फिर फरमाया कि तुम्हारे मददगार तो हैं अभी जिब्राइल, जाति और अताई नेक का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे हाँ एक मैं बात बताता हूँ, आपको जाति और बताता हूँ, अताई का मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट है, ये कैसे के बनेंगे? मैं तुमने बता कैसे कैसे बनाएंगे? अभी बता रहा हूँ, तुम भी बनाते हो, अब सुनो कैसे बनाते हो। आपका एक भाई सऊदी अरब में है हम्म। और आपको अभी 10,000 रुपये की जरूरत पड़ जाए, अदर आप 1-2 मिनट में बात लगाता सुनो हूँ, ना, आपको कॉल है, थोड़ा पहले अर्जेंट सुनो, जा रहा हूँ। भागो नहीं, हाँ भागो नहीं, ठीक है भागो नहीं, 1-2 मिनट भागो नहीं, लगाता मेरे को। भागो नहीं, रुको हाँ। रुको, नहीं, मैं भागो भाग नहीं, रहा नहीं, मैं वो अमजद रुको भाई को नहीं मालूम है, आप मेरे को रुको बात रुको करनी। रुको रुको मस्जिद में इंशाल्लाह अपन मिलेंगे अपन। रुको, भागो चलो नहीं, अल्लाह हाफ़िज़। भागो मैं नहीं, मिलता भागो हूँ नहीं, मस्जिद में। ए वहां भी भाग मत, अरे रुको, भाई, मैं भागने भागो वाला नहीं, में से नहीं हूँ, मैं भाग मस्जिद नहीं, में मिलता हूँ भाग तुमको नहीं, भाग इंशाल्लाह। नहीं, वहां भी रुक रुक, सुन पहले ये रिवायत। भाग गया वहां भी, हेलो भाग गया वहां भी, हेलो भाग गया कट वहां कर भी, देगा हजरत? भाग गया वहां भी, रिकॉर्डिंग कर लो हजरत। कर लिया रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, डालो इंशाल्लाह। ओ बहुत बड़बड़ कर रहा था, करके तुमको डाला मैंने उसका ठीक है, ठीक नंबर। है, हाँ जी हजरत, माफी चाहता है थोड़ा हजरत, तुम्हारा ना टाइम ना लिया कोई मैंने। बात नहीं, ऐसे लोगों को आईना दिखाना जरूरी है, आवाम सुधरेगी कैसे। हाँ ठीक जी हजरत जी, ठीक ठीक। सलाम अलैकुम। जो मैंने लिखी हुई है तहकीक करके, मेरी बात सुनिए, नहीं सुनो ना, उसमें पहले कुछ मेरी कुरान बात के सुनिए, पहले बात सुनिए। क्या आप इंजीनियर की किताब को खुद से तहकीक करके इंजीनियर बन जाएंगे? ये बताइए पहले। नहीं तो जो चीज तहकीक की हुई है, तहकीक शुदा है, जो इजमा के नजदीक काबिल कबूल है, जो मुहद्दिसीन के नजदीक काबिल कबूल है, उसमें बात की खाल निकालने वाला दीन में इमाम अल्फसानी कहते हैं या तो वो जाहिल है या वो गधा है। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही। मुझे आप एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए हजरत, पहले बात सुनिए ना, आप ये जो अकीदा है पहले बात सुनिए अल्लाह ना, के अलावा औरों पहले से बात तो मांगना, सुनिए, बात सुनिए ना। जैसे इमाम बुखारी है, इमाम बुखारी ने अकेले तहकीक किया बुखारी शरीफ पर, ठीक है, हर जगह अकेले गए, हर रावी से अकेले बात की, हर रावी से हदीस ली, है ना। अब वो हदीस हम तक आई, ठीक है, शिया उस हदीस को नहीं मानते, सही बात, ठीक है, हम उस हदीस को मानते हैं। और इमाम बुखारी का नाम ना तो कुरान में है ना हदीस में है। तो इमाम बुखारी की अकेला तहकीक की हुई हदीस को हम सही मान लेते हैं, मानते नहीं मानते? दोनों तरफ है। हाँ, अब देखिए, इमाम बुखारी की सही हदीस को शिया नहीं मानता। 227-26 है, देखना, आप पूछना उनसे, बूथ वालों से पूछना। हजरत, इमाम बुखारी की सही हदीस को शिया नहीं मानते, कादियानी नहीं मानते, चकरालवी नहीं मानते, राफजी नहीं मानते, नाफसी नहीं मानते और खारजी नहीं मानते। अब अगर आप कहेंगे उम्मत का इजमा है तो आपको इल्म नहीं है। उम्मत का इजमा कभी भी नहीं होता है, इजमा होता है मुहद्दिसीन का, उलमा का, फुकहा का, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक आलिम और जाहिल बराबर नहीं होते कभी भी। सही बात। कुरान कहता है सीखो उससे जिसके पास इल्म हो। बेशक ये बात कुरान कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, कि अल्लाह हमें तो उसके रास्ते पे चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। सही बात। तो हमें इनाम नाजिल जिसके ऊपर हुआ है तो हमें कैसे पता लगेगा? हमें इजमा से पता लगेगा। आप एक बात बताएं, इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी की कई हदीसों पर जरा की है, तो अगर आप इमाम मुस्लिम की बात को मानेंगे तो इमाम बुखारी की कई हदीसों पे जरा कर देंगे, लेकिन वो उनकी अपनी तहकीक है। और इमाम मुस्लिम की कई हदीसों पर इमाम तिरमिज़ी ने जरा की है। सही बात। तो ये सारे मुहद्दिसीन और फुक़हा जो हैं, इन्होंने अकेले तहकीक शुदा को हदीसों को इकट्ठा किया। अच्छा ये बताइए, इमाम बुखारी से पहले कौन सी हदीसों को माना जाता था? इमाम बुखारी से पहले हाँ, मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ को माना जाता था। वो टॉपिक अपना वो टॉपिक नहीं है। सुनिए ना, आप लंबा जा रहे हैं, मैं बहुत दूर जा रहे हैं। आपको पूरा लेकर के आ रहा हूँ ना। फिकाए हनफी को माना जाता था, फिकाए हनफी को पढ़ा जाता था। फिकाए हनफी को पढ़े बिना तो आज भी कोई मौलवी नहीं बन सकता है। तो इमाम शाफई गुजरे, सुनिए, इमाम अबू हनीफा गुजरे, इमाम शाफई गुजरे, इमाम मालिक गुजरे, इमाम हम्बल गुजरे। उसके बाद ये लोग आए हैं, पहले वो इमाम हैं। अब हम किसी की भी किताब को पढ़ें, चाहे हम
इमाम अबू हनीफा से लेकर के इमाम शाफई, मालिक, हम्बल। इमाम हम्बल लिखते हैं मोता इमाम मालिक के अंदर, इमाम मालिक लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जब इंसान खो जाता है किसी जगह पर, आसपास कोई आदमी नहीं होता, तो अल्लाह ने कोई कुछ बंदे पोशीदा रखे हैं जो मदद करते हैं, तो उनको पुकारा जाता है। उनको पुकारने का तरीका बताया कि ए अल्लाह के पोशीदा बंदो मेरी मदद करो। इमाम मालिक जो है एक बार हज के लिए जा रहे थे, आप रास्ता भटक गए। आपने मोता इमाम मालिक के अंदर लिखा कि जब मैं रास्ता भटक गया तो मैंने कहा कि ए अल्लाह के पोशीदा बंदो मेरी मदद करो, और फिर मुझे मेरी मदद मिली और मुझे रास्ते का पता लगा। तो अब मैं उनकी बात को मानूं या आपकी बात को मानूं? अच्छा, आप मैं बोलता था, देखो आप किसकी मुझे बात एक को बात मानूं? बताओ, मैं उलमा को मानता, सही है, मैं कोई अहले हदीस नहीं है, मैं बात उलमा पहले को follow हदीसों वाली करता। नहीं करते ना आप नहीं, फॉलो। नहीं, नहीं। आप अगर मुझे आप एक बात follow बताओ, करते, सुनिए। मेरे नजदीक अहले सुन्नत वल जमात के 3 ग्रोह है, बड़े बड़े ग्रोह। सुनो ना 2 मिनट, मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ। अब जिसमें से एक बरेली मकतब फिक्र है, वो जो कहता है कि ये गैरों से दुआ मांगना क्या है, शिरक नहीं है, जायज है। और जिसके मुखालिफ 3 बड़े ग्रोह है, एक देवबंदी अहले सुन्नत, अहले हदीस और दीगर जमात इस्लामिया वगैरह जैसे चले जो अब ग्रोह है। एक बात बताइए 2 मिनट सुनो ना, अब मेरा अकेला का तो ये फतवा नहीं, जो बरेली देवबंद तो बड़े बड़े उलमा है, ये भी तो बोल रहे बराबर, चलो ये अब अलग बोल रही है, अलग अब बोल रही सुनिए, है। मैं तो अपनी बात नहीं लगा रहा ना। आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा कि बरेलवी की मुखालफत 3 बड़ा गिरोह करता है, एक अहले हदीस करता है, एक देवबंदी करता है, यही बोला ना आपने? ये मसलक के ऊपर हाँ, बात कर रहा हूँ, अच्छा, ये जो चले मसलक है, चले और हम इस खामोश पर हो वो जाइए। डायरेक्ट कुफ्र और शिरक का फतवा अब देते। खामोश हो तो अब जाइए, इंसान, आम अब इंसान तो खामोश फिक्र तो हो करेगा ही जाइए ना ना, कि आप खामोश तो हो जाइए हाँ, यार, चुप हो जाइए ना, चुप होना भी तो सीखिए। अब ठीक है, ठीक आपने है, ठीक बोला कि ये 3 गिरोह बड़े बड़े क्या कहते हैं, जरा करते हैं, शिर्क का फतवा लगाते है। हैं, हाँ, यही बोला इनके ना उलमा, आपने? यही बोला ना हाँ, आपने? अच्छा, अब ये बताइए कि अहले हदीस की नींव रखने वाले, अहले हदीस को जन्म देने वाले सिद्दीक हसन भोपाली है, नसीर हुसैन देहलवी है? क्या पता मेरे को। नहीं पता हाँ, तो पता करो ना बाबा। सिद्दीक हसन भोपाली है जिसने हिंदुस्तान में अहले हदीस की नींव को रखा, जिसकी पक्की मजार, हाँ, पक्की कब्र भोपाल में बनाए हैं ये लोग, ठीक है? हाँ, उसके बाद नसीर हुसैन देहलवी है जिसने फतवा नजीरिया लिखी। उसके बाद इब्ने तैमिया है। उसके बाद हाँ, हाँ, उसके बाद मौलाना बटालवी है, ठीक है? तो ये जो बड़े बड़े हाँ, इनके जो बड़े बड़े मुहद्दिस, इब्ने तैमिया के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई है बिहार में, इब्ने तैमिया के नाम से, नाम उसका रखा है यूनिवर्सिटी इब्ने तैमिया, ठीक है? और ये जो बड़े बड़े इमाम, तो अब ये जो बड़े बड़े इमाम अपनी किताबों में जो लिख करके गए हैं, हमें इनकी बात को मानना है? जो आज के नाम निहाद अहले हदीस हैं, इसकी बात को मानना है? हाँ, तो हजरत वो भी तो बड़े बड़े दलील देते ना, अच्छा, आप सुनिए वो ना, बड़े बड़े उलमाओं की दलील आप देते, सुनिए, अब वो सुनिए ना, कुरान की आयतें अरे चेंज करते। सुनिए। सिद्दीक हसन भोपाली हदियतुल मेहंदी के अंदर लिखता है कि जब उसका पीरो मुर्शिद था जिसका नाम था इब्ने कय्यम काजी शौकानी, वो कहता है सिद्दीक हसन भोपाली कि वो मदद कैसे मांगता है, ए इब्ने कय्यम मेरी मदद कर, ए काजी शौकानी मदद कर, मैं रोता हूँ, बिलबिलाता हूँ, ठंडी आहें भरता हूँ, ए मेरे दीन के रहनुमा मेरी मदद कर। और ये जाके मांगता है उनकी कब्र पर, सिद्दीक हसन भोपाली। सिद्दीक हसन भोपाली की पक्की कब्र भोपाल में बनी हुई है, गूगल पे सर्च कर लेना, आ जाएगी। साल में एक बार ये लेकिन सारे अहले हदीस, अब खामोश वो रहो ना यार, साल में एक बार ये अहले हदीस वहाँ इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे सीरत नबी के जलसे करते हैं, जर्जिस आता है, मिराज रब्बानी भी आता है, ठीक? अब मुझे बताओ, ये हजरत, सिद्दीक हसन भोपाली मुशरिक हुआ या नहीं हुआ? वो अभी तो आपने तीनों ऐसा गिरोह अमल के करने बारे में वाले वो तो बताया। सब मुशरिक बोलते ना। किसको? सिद्दीक वो तो हसन भोपाली ये को? अमल करने वाले को तो मुशरिक ही बताते ना। तो सिद्दीक हसन भोपाली को, आपके अंदर सलाहियत है कि अहले हदीस सिद्दीक हसन भोपाली को मुशरिक का फतवा दे सकते हैं? अच्छा, दूसरी मैं बात क्या बोला सुनिए, अब हजरत, दूसरी बात सुनिए। ये है किताब का नाम सिरातल अल मुस्तकीम, लिखने वाला इब्ने तैमिया। ये लिखता है कि औलिया अंबिया से मदद मांगना, ये कुरान की कौन सी आयत और हदीस की कौन सी हदीस का इनकार होता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया।
फतावा मजमुआ। अब सुनिए, सिरातल अल मुस्तकीम लिखता है कि औलिया की कब्र पर फरिश्तों का नुज़ुल होता है और रहमतों की बारिश होती है और वहां जाके दुआएं कबूल होती हैं। सिरातल अल मुस्तकीम इब्ने तैमिया, जिसको ये शेखुल कुल हदीस बोलते हैं, तो इन अहले हदीसों के अंदर जब हमको इनकी किताबें पेश करते हैं तो इसके ऊपर ये फतवा नहीं लगाते, फोन काट के भाग जाते हैं। तो समझे? हजरत अभी वो तो उनका आप मुझे अहम बताइए, जो एक मिनट रुकिए। आपने बोला ये बड़ा गिरोह इल्जाम लगाता है बरेलवी पे कि बरेलवी अपनी किताबों के जरिए तो ये सब चीजें बताता है ना, तो वही चीज तो इनकी किताबों में भी लिखा है। तो ये दोनों के अकीदे क्यों नहीं हुए? अब आइए देवबंदी की तरफ। आपने बोला देवबंदी मुशरिक बोलता है। ये देखिए, देवबंदी के ये आलिम अशरफ अली थानवी, किताब का नाम है इमदादुल मुश्ताक। वो लिखता है कि पीरो मुर्शिद मरते नहीं, एक जगह से दूसरी जगह इंतकाल करते हैं, और जिस तरीके से मैं अपने पीर से ज़ाहिरी ज़िंदगी में मदद हासिल करता था, उनकी कब्र से भी उसी तरीके से मदद हासिल करता हूँ। मेरे पीर का एक मुरीद उनकी कब्र पर आया और कहा कि हज़रत परेशान हूँ, मोहताज हूँ, रोटियों के लाले पड़े हुए हैं, मेरी दस्तगीरी फरमाइए। मेरे पीर की कब्र से निदा आई कि जा तेरी दस्तगीरी हो जाएगी, तुझे मेरे सिराने से आधा आने या एक आने उजरत मिलेगी। और जब मैं अपने हजरत के पीर की जियारत के लिए गया तो ये मैंने माजरा अपनी आंखों से देखा कि उसको सिरहाने से आधा आने उजरत मिलती थी। अशरफ अली थानवी, किताब का नाम इमदादुल मुश्ताक। अच्छा, उसके बाद लिखता है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की लिखते हैं कि उनका एक रिसाला है, रिसाले में बोलते हैं फरियाद है ए हबीब किबरिया फरियाद है, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, मैं रोता हूँ बिलबिलाता हूँ। तो ये पूरी एक रिसाला इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने अशरफ अली थानवी के पीर, कासिम नानोतवी के पीर, रशीद अहमद गंगोई के पीरों ने लिखा। और 50 हवाले हैं देवबंदियों के मदद और वसीले के ताल्लुक से। तो देवबंदी की अगर किसी माँ ने अच्छा हलाली बच्चा पैदा किया है ना, तो पहले जाके अपने आलिमों के ऊपर फतवा डाल के दिखाए। तो ये दोनों के घर ना से तो सेम अकीदे बरेलवियों के जाहिर हो रहे हैं। अब अगर ये इल्जाम लगाते हैं तो मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक का वालिद बिल्कुल इंसान है, सरपरस्त है, अच्छा है। अब अगर उसका बेटा अपने बाप को हरामी कहे, चोर कहे, तो बेटा बदबख्त है ना, या बाप बदबख्त है? कौन बदबख्त है? बेटा वक्त तो बेटा तो बेटा आज के जो नाम निहाद अहले हदीस हैं जो हम पर फतवा लगाते हैं, लेकिन जब वो हमारे सामने आते हैं तो जब हम उनके घर की किताबें पेश करते हैं तो फोन काट के भाग जाते हैं। समझे नहीं समझे? अब हजरत अभी आपको तहकीक एक नहीं है इन सब चीजों मुफ्ती को की। मैंने ये बातें बोली थी, सुनिए। ये सवाल किया था कि ये तो ऐसा बताते, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि मुफ्ती साहब बहुत बड़े मुफ्ती, उन्होंने ये बात बताई थी कि जो वो बातें बताते हैं उसके मतलब अलग होते हैं, लेकिन उसका मतलब वो अस्तगफिरुल्लाह। अलग निकालते हैं। अच्छा, एक काम करें, लेकिन आप हमारे एक काम बुजुर्गों का करें, मतलब अलग एक होता है, काम ये एक अलग काम निकालते करें, हैं, अपने एक मतलब काम के करें, वास्ते मतलब अलग निकालते बोले। सुनो सुनो, यही तो जहालत है ना बहुत बड़ी। आपने कहा कि और मैंने वो एक बोलते मुफ्ती हैं से हम बात की। जो बोल रहे हैं वो सही बोले। सुनिए ना भाई, आपने अभी ये बोला कि मैं एक मुफ्ती के पास गया और मुफ्ती ने ये कहा कि वो जो मतलब है वो कुछ और निकालते हैं और किताब में जो मतलब है कुछ और होता है। चलिए ठीक है, आप ही इंसाफ करिए। अब ये देखिए, हदियतुल मेहंदी किताब है, सिद्दीक हसन भोपाली अपने पीरो मुर्शिद की कब्र पे गया और कहता है ए हबीबे किबरिया फरियाद है, माफ करना, कहता है कि ए हाजी शौकानी मदद, ए इब्ने कय्यम मदद, मैं रोता हूँ बिलबिलाता हूँ, ठंडी आहें भरता हूँ, ऐ मेरे दीन के रहनुमा मदद। तो आप ये बताइए कि ये कब्र पे जाकर के सिद्दीक हसन भोपाली मदद मांग रहा है, तो इसमें आप क्या आप बताइए क्या हमने गलत निकाला अंदाजा, बताइए जरा। हाँ तो हजरत वो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि भैया ऐसा तो तुम आप डायरेक्ट भी सुनो सुनो, बताते हो, हाँ सुनो तो आप, उन्होंने क्या बताया देखो, बोले मैं एक वाजिब बात बताता हूँ हाँ कि चाहे बरेली हो, बोले देवबंदी हो, कोई हाँ भी हो, बोले हाँ हाँ मुफ्ती बता रहे कोई भी हो, बोले हाँ हाँ तुमको एक वाजिब एक ही बात में सब समझाया था। अगर कभी कोई ये अल्लाह के अलावा किसी से मुश्किल कुशाई या हाजत रवाई का फतवा रखता है, दुआ मांगता है, हाँ। तो वो मुशरिक है, चाहे अच्छा, कोई भी हो, बोले। चले ठीक ठीक ठीक। तो वो उन्होंने ये एक बताए एक मिनट थे। रुक जाओ, उनसे ये पूछो कि जो तुमने ये अकीदा बनाया है ये किस मुहद्दिस का अकीदा है, वो एक हवाला पेश कर दो। मुहद्दिस कौन, हाँ, मतलब वो किस मुहद्दिसीन, सुनो मुहद्दिस किसको कहते हैं, कुरान सुनिए और हदीस बताते हैं, सुनिए, और पूरे कुरान की अरे और हदीस की आयतें बताए। अरे सुनो ना यार, इसीलिए तो कहता हूँ तुमको जाहिल बना के रखा हुआ है। सुनिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होगा जो दीन को उभार देगा, निखार देगा।
क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होगा। तो जो अल्लाह के रसूल ने बताया हाँ हमको उस पर ईमान लाना है या इस मुफ्ती पर ईमान लाना है? नहीं, मुजद्दिद पर ईमान लाना है। तो मुजद्दिद की इतनी सारी जमात आई है, जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, इमाम बुखारी आए, इमाम मुस्लिम आए, इमाम तिरमिजी आए, इमाम अबू दाऊद आए, इमाम हजर आए, इमाम जलालुद्दीन सूती आए, इमाम जैबी आए, इमाम बैजाबी आए, इमाम अल्लामा अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह आए, इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन आए, ख्वाजा फरीदुद्दीन आए, ख्वाजा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी जिन्होंने हिंदुस्तान में हदीसों की नींव रखी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जिन्होंने हिंदुस्तान में हदीस लेके आए, ये सारे बड़े बड़े मुहद्दिस आए। इनमें से एक का भी कौल मुझे ये दिखा दो कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मदद मांगना, पीरो मुर्शिद से मदद मांगना, वलियों से मदद मांगना, साहबा से मदद मांगना शिर्क है और वो मुशरिक हो जाएगा। खुदा की कसम मैं अहले हदीस की गुलामी करूंगा। अच्छा सर, फिर वो मुफ्ती साहब जितने सारे बताते, जितने अब मैं पूरी बताता हूँ उनके अब जितने भी लोगों के बयान सुनो, हाँ, अब तो सुनिए वो ऐसा कोई नहीं बोलते हो, सब यही बात बोलते हो। अब सुनिए, एक बात बताइए कि कादियानी को हम क्या कहते हैं? काफिर। आप भी कहते होंगे, क्या कहते हाँ, हैं? कादियानी को काफिर कहते हैं। तो कादियानी का मुफ्ती आकर के आपको कुछ समझाएगा या कुछ बताएगा अहमद कादियान के बारे में कि अहमद कादियान का नाम कुरान में भी है, हदीस में भी है, और अहमद कादियान आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद भी नबी आ सकते हैं, वो आखिरी नबी हैं, तो क्या आप उसके मुफ्ती की बात को मानेंगे? नहीं तो वो बात तो नहीं ना सर, वो नहीं तो मानेंगे। अभी तो देखो मेरे एक मिनट खामोश रहो। अब आपके पास शिया का कोई मुफ्ती आएगा और वो ये कहेगा कि अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल जो है वो हजरत अली है, हजरत अबू बकर नहीं है, हजरत उमर नहीं है, हजरत उस्मान गनी नहीं है, और कोई सहाबी नहीं है। अल्लाह के बाद, रसूल के बाद, हुजूर के बाद तमाम अंबिया से अफजल हजरत अली हैं। अगर कोई शिया का मुफ्ती आके आपसे कहेगा तो शिया को हम काफिर कहते हैं, आप उसकी बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं मान क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारे पास मुहद्दिसीन का इजमा है कि अल्लाह के बाद बिला तहकीक नबी अलैहिस्सलाम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजलियत में सबसे ऊपर है ना? ये हमारे पास इजमा है। तो अब जो मुफ्ती पढ़ाई करके शिया का आया वो भी वही किताबें पढ़ के आया है, जो मुफ्ती क्या कहते हैं कादियानी का पढ़ के आया वो भी वही किताबें पढ़ के आया है, मुफ्ती बना है। तो जो अहले हदीस का मुफ्ती आकर के हमें नई चीज, ये दो जनों ने हमें नई चीज बताई, हमने नहीं माना। तो अब ये जो अहले हदीस का मुफ्ती आया हमारे पास और इसने ये कहा कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है अल्लाह के अलावा, तो ये भी नई बातें बता रहा है, इजमा में तो हमको नहीं मिलता, तो हम इसकी बात को क्यों माने? हाँ तो हजरत वो कोई एक चीज बताए तो ठीक है, लेकिन सभी वही बता रहे। अरे तो कादियानी की कितनी जमात है? ए भाई सुनो ना, कादियानी की अभी 1 लाख कादियानी बने हैं, तो कादियानी के अगर 50,000 मुफ्ती तुम्हारे पास आकर के बोलेंगे तो तुम मान लोगे? नहीं मानोगे? उसको मानने की नहीं वजह क्या है? वजह ये है कि मैं अरे यार अजीब आदमी हो, एकदम बिल्कुल अजीब, एकदम घावड़ आदमी हो, अजीब आदमी। नहीं सुनो ना मेरी बात। मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं अहले सुन्नत वल जमात की उलमा की मानूंगा ना। हाँ तो अहले सुन्नत वल जमात तुम तो मानते नहीं ना उसको। मानूंगा तो उनकी मानूंगा। तो शिया सुनो, कादियान इसको अहले हदीस को तो अहले सुन्नत वल जमात हम मानते ही नहीं ना, उन्होंने अकीदा ही अलग गढ़ दिया ना अपना, उन्होंने तकलीद को हराम कर दिया, इसलिए मैं उनकी मानूंगा नहीं ना। हाँ तो अहले हदीस की क्यों मान रहे हो? अहले सुन्नत वल जमात कौन है? अहले सुन्नत, अच्छा जमा किसका फेंका है? हेलो, अहले सुन्नत वल जमात का माना क्या है? सामने सुनो भाई, इधर उधर के बातें मत करो, जो कुरान हदीस का मसला है उसमें हमारा ईमान है, अल्लाह रसूल की बातों पे। सुनो मैं कुरान हदीस की बात बोल रहा था। अरे यार हदीस में मत बोलो ना, मत बोलो। मैं ये बता रहा कि मैं अकेला जाहिल नहीं, सुनो मैं उलमाओं से ये बात कर रहा हूँ, मैं अकेला सुनो, मैं यही बोल रहा है कि मेरा फतवा नहीं है। अरे सुनो ना भाई, ए भाई सुनो ना, उनकी मुहद्दिस से नहीं ले। अरे सुनो ना भाई, उनकी मुहद्दिस की उन्होंने तो कुरान हदीस से बताए हैं। अरे सुनो ना भाई, कुरान हदीस मुझे ज्यादा बेहतर लगी। अरे सुनो ना भाई, तो सुनो एक मिनट चुप रहो, सुनो मेरी बात। तुमने ये कहा कि उन्होंने कुरान हदीस से बताए, तुम हो जाहिल जपट, तुमको पढ़ना लिखना नहीं आता, तुमने कैसे तहकीक किया उसका? आती पहली बात,
अरबी नहीं आती। तुमने कैसे तहकीक किया उसका? देखो अरबी दिखाओ। नहीं आती, इसका मतलब आप कोई ये नहीं बोला है कि अब तुम मुसलमान क्यों हुए, को अरबी नहीं आती, तुम ये अच्छा, चीज एक मिनट। सवाल नहीं कर सकते, तुम अच्छा, एक मुसलमान ही मिनट नहीं। रुको। सीखना फर्ज है ना। रुको मतलब मुसलमान, रुको, मैं रुको, बोलता रुको, अरबी नहीं आती रुको, मतलब मैं रुको। मुसलमान नहीं किया। रुको हमने ये रुको नहीं बोले, रुको। पहले अरे मुसलमान जुमला बनने सीखो की उसका। सिर्फ ला इलाहा सैयद साहब, इल्लल्लाह सैयद मुहम्मद साहब बीच में मत रसूलुल्लाह बोलिए कहना आप, पड़ता। बीच में मत जी बोलिए। जी ठीक है, सुनो, मेरी ठीक बात है, सुनिए, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। हाँ आपने कहा अहले सुन्नत वल जमात, तो जमात बनती है जमा से, बनती है नहीं सही बनती बात, जमा से? अच्छा, अब अहले सही। सुन्नत वल जमात का एक तबका मैं अलग करता हूँ, जिसके अंदर बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े फुकहा और बड़े बड़े अइम्मा हैं, ठीक है? अब वो सही बात। कह रहे हैं अपनी अपनी किताबों में कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है। उनका भी अमल ये चीज साबित हो गया, वो भी मांगे हैं। हम्म। और एक तरफ मैं ये चंद अहले हदीस की जमात को अलग करता हूँ, और एक तरफ चंद अगर अहले हदीस का होता तो मैं नहीं मानता, लेकिन ये जो देवबंद है जो पहले से अरे अंग्रेजों से तुमको भी अभी पहले से देवबंद की मैंने एक किताबें बहुत खोल बड़ी के जमात बताई थी। ना, देवबंद की खोल के किताबें नहीं बताई नहीं ना नहीं, मैंने। वो तो आज तो मैं मेजोरिटी देखो, आज वो पिछले अरे किताबों आज में का क्या है मेजोरिटी मैं तुम्हारे क्या बाप को नहीं, हरामी मुझे बोलेगा नहीं तो तुम मालूम, अपने बाप को हरामी लेकिन मान लोगे क्या? नहीं 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 मैं क्या ऐसा पूछ नहीं रहा ना, हूँ, वो मैं क्या बहुत पूछ बड़ा रहा हूँ, अकीदा ना। मैं क्या आज का मेजोरिटी अगर आपके बाप को हरामी बोलेगा, 4 मुफ्ती, तो अपने बाप को हरामी मान लोगे? ये बताओ। वो मेरे बात को हम आरामी क्यों बोलेंगे हम? हाँ, तो फिर क्यों क्यों तुम मसला उन वही नहीं मेजोरिटी ना। की बात को मान रहे हो? जब देखो मसला है, उनकी सुनो, बात, अरे भाई सुनो, इख्तिलाफी मसला। सुनो, उनकी बात मुहद्दिसीन की बात से टकरा रही, उनका अकीदा मुहद्दिसीन के अकीदे से टकरा रहा, तो हम अहले सुन्नत वल जमात मुहद्दिसीन को पकड़ेंगे ना? हाँ सही अजीब बात है ना, बेवकूफ लेकिन आदमी वो है भी यार। मुहद्दिस की बातें बताते ना, अबे वो जाहिल हो भी तो मुहद्दिस की तुमको बातें कैसे पता लगा बताते, वो मुहद्दिस की हदीस बात की बता बातें रहा है? बताते। कौन सी किताब बताया उसने मुहद्दिसीन का? हाँ कौन उनके सी पास भी किताब? दलील है ना हजरत, वो मैं क्या पूछ रहा मेरे हूँ, पास सुनो, तो बहुत आप दलील। किसी वहाबी के आलिम को लाइन पे ले लो, किसी वहाबी की लाइन पे लो लाइन पे लो। अभी तो मेरे पास एक भी नहीं अवेलेबल है, उनकी एक का भी नंबर नहीं है मेरे पास। आप सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो किसी मुहद्दिस की किताब को आपको बताएंगे तो वो किताब का नाम देंगे ना, वो किताब का हवाला देंगे ना आपको, उसमें ये लिखा हुआ हाँ होना चाहिए ना कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क हो जाएगा, ये लिखा होना चाहिए ना। हाँ सही बात, हाँ, पहली सही चीज बात। सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आप किसी ऐसी जगह में जहाँ के रह रहे हो जहाँ कादियानी का पूरा मजमा है, पूरी मेजोरिटी कादियानी की है, हाँ और कादियानी के सारे आलिम हैं, मुफ्ती हैं, तो वो अगर आपको नई चीज बताएंगे, नई चीज का मतलब ये है, अगर आपको वो ये बताएं कि हुजूर के बाद कोई नबी पैदा हो सकता है, रहमत कादियान हुजूर के अल्लाह के नबी हैं, तो आप उस मेजोरिटी को मानोगे? नहीं मानोगे? ध्यान मैं से तो सुनना। उनके पास जाऊंगा ही नहीं ना हाँ, हजरत, ध्यान से सुन, कादियानी का मेरे पास तो कोई अरे ध्यान से वही नहीं सुनो ना। ना यार, तुम यार पता नहीं खाना खाते हो, गोबर खाते हो, दिमाग में क्या भरा है? सुनो, तुम उसकी बात को हाँ नहीं मानोगे क्योंकि वो नई चीज बता रहा है आपको, ठीक है? हाँ अब आप तहकीक कैसे करोगे कि आप देखोगे पूरा अहले सुन्नत का इजमा, देखोगे आप मुहद्दिसीन का कौल देखोगे, फुकहा का कौल देखोगे, सहाबी का कौल देखोगे, कुरान देखोगे, हदीस देखो, तो उसमें ये मिलता है कि अल्लाह के रसूल के बाद नबूवत का दरवाजा बंद, कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, ठीक है? तो आप उसकी बात को नहीं मानो क्योंकि वो नई चीज बता रहा है, वो उसकी बात इजमा से टकरा रही है, ठीक है? तो बात मानेंगे इजमा की। हाँ सही फिर बात, हाँ, फिर आप सही बात। अब आप फिर अब खुदा ना खास्ता आप शिया में गए, तो शिया की जो मेजोरिटी है, पूरी मेजोरिटी आलिमों से लेकर के मौलवी तक, वो मेजोरिटी आपसे हाँ कह रही है कि हुजूर के बाद सबसे अफजल हजरत अली है, और वो भी आपको कुरान से ऐसी ऐसी दलीलें देंगे, हदीस से ऐसी ऐसी दलीलें देंगे, और ऐसी ऐसी अइम्मा की किताबें देंगे कि आप समझने पे मजबूर हो जाओगे। अगर आपने एक सही बात। महीना उनकी सोहबत इख्तियार कर ली ना, तो आप हजरत अली को अल्लाह के रसूल के बाद अफजल मानने लगोगे, ये लिख के देता हूं मैं। लेकिन अब तो आप क्या वैसे ही मेरे देखोगे, साथ हुआ। सुनो ना, अब आप क्या देखोगे, अगर आप पढ़े लिखे हो तो देखोगे कि कुरान हदीस से लेकर के इजमा, मुहद्दिसीन का, फुकहा का इजमा देखोगे कि क्या किसी ने हजरत अली को अफजल माना है हजरत अबू बकर से, तो आपको मिलेगा नहीं। तो आप उस इजमा को पकड़ के इस इजमा को छोड़ दोगे, समझना मेरी बात नहीं को, छोड़ेंगे। समझना मेरी बात को। तो आप मुहद्दिसीन का इजमा पकड़ोगे कि हुजूर के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, ठीक है? आप फिर ये शिया का इजमा छोड़ दोगे, छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? क्योंकि ये नई चीज बता रहा है, ये नई चीज बता रहा है आपको, और वो भी आपको कुरान हदीस से दलील दे रहा है, वो भी आपको फुकहा की किताबें दिखा रहा है, वो भी आपको इम्मा की किताबें दिखा रहा है, ठीक? तो आप उसको छोड़ोगे।
आप पकड़ोगे मुहद्दिसीन के इजमा को। ये दो नई बातें हो गई, ये दो नई बातें हो गई। अब आप चले गए अहले हदीस में। तो अहले हदीस एक ने टॉपिक दिया नबी का, दूसरे ने टॉपिक दिया हजरत अली का, अब तीसरा आपको टॉपिक दे रहा है कि अल्लाह के अलावा तमाम सहाबा, हुजूर, नबी, सहाबा, ताबई, तबे ताबई से मदद मांगना, जबकि अल्लाह ने उनको मददगार बनाया है। मदद मांगना शिर्क है, ये बात उसने आपको बताई, और वो आपको कुरान दिखा रहा है, हदीस दिखा रहा है, इमाम की किताबें दिखा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब जब आप मुहद्दिसीन के कौल को देख रहे हो, फुकहा के कौल को देख रहे हो, ताबई के कौल को देख रहे हो, तो उन सब का अकीदा इनके अकीदे से अलग जा रहा है, टकरा रहा है। उनका अकीदा ये है कि अल्लाह ने इनको मददगार बनाया है और इनसे मदद मांगना जायज है। तो अब उनका अकीदा टकरा रहा है। तो अब आप कह रहे हो कि मैं आज की मेजोरिटी को मानूंगा, तो गुमराही पे कौन जा रहा है ये बताओ। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था, अभी जो मुहद्दिस है वो अभी कौन मुहद्दिस पैदा हो गया, अभी कौन मुहद्दिस पैदा हो गया? हर 100 साल में, हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होगा, और इस सदी के मुजद्दिद अहमद रजा खान फाजली बरेलवी, इस पर इजमा है पूरे मुहद्दिस फुकाहा का। अब मुझे एक बात बताओ हजरत, अब ये जो मुहद्दिस का अगर वो भी बताए कि ये यार सही में अल्लाह ताला ने कुरान में बिल्कुल सही फरमाया है कि जाहिलों से बहस मत करो। अभी तुमको तो मैंने पूरा एकदम तफसील से तुमको मैंने तफसील से ये बताया, तुमको तफसील से बताया, अभी तुमने हामी खुद भरा कि नई चीज शिया बता रहा है। सुनो ना बात, सुनो ना अभी, सुनो ना बात, सुनो ना। तुमको मैंने अभी क्या बताया, तुमको मैंने बताया कि शिया नई चीज बता रहा है, तुम्हें हजरत अली को मर्तबे में अफजल कर रहा है, तुमने इजमा को देखा, इजमा का अकीदा टकरा रहा, तुमने इजमा की मान लिया, इसको छोड़ दिया। फिर तुमने देखा कि कादियानी तुमको बता रहा है कि आखिरी नबी अहमद कादियान है, तो तुमने इजमा को देखा, फुकहा को देखा, और उनका अकीदा इससे टकरा रहा, आपने उनको छोड़ दिया। अब तुमने ये देखा कि ये अहले हदीस बोल रहा है कि तमाम अंबिया, हुजूर की अल्लाह के बाद तमाम अंबिया से, औलिया से, फुकाहा से मदद मांगना शिर्क है, और इनका अकीदा फुकाहा से, अइम्मा से, इजमा से टकरा रहा है, मुहद्दिसीन की किताबों से, उनके अमल से टकरा रहा है। तो तुम कह रहे हो कि नहीं, मैं उनको छोड़ के इन जाहिलों को पकड़ूंगा। हजरत मैं एक बात बताता, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मैंने एक किताब का वो मेरे पे आया था, एक आलिम ने मुझे बताया था कि पक्की कब्रें बांधना, सुनो ना तुम्हारा जवाब, पक्की कब्रें बांधना बहुत बड़ा गुनाह है। अब जो मुहद्दिस के जो आप नाम गिना रहे हैं, सुनो 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 बहुत से मुहद्दिसों के उन्होंने तुम कब्र पे बाद में जाना, अभी तुम कब्र पे आओगे ना, तुम कब्र पे आओगे ना तो फंस जाओगे। वो भी मुहद्दिसों की बातें बताते ना, मुहद्दिसों के बहुत से बातें हैं, मुहद्दिसों के मौलाना देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के, उनके बहुत से वो भी फतवे बताते ना। तो तुम अहले हदीस से सिर्फ इतना पूछ लो कि अगर पक्की कब्र बनाना मना है तो ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की पक्की कब्र किसने बनाया है? ठीक, इब्ने तैमिया की पक्की कब्र, सुनो इब्ने तैमिया की वो खुद पकड़े देते, सुनो ना यार, मुहद्दिस ये चीजों को मना करते थे। अरे भाई अल्लाह के अलावा किसी से दुआ ना मांगे। कौन से मुहद्दिस ने बोला भाई, बताओ ना यार। बहुत से लोगों को बताते हो। अरे यार तुम पता है क्या है, सुनो, तुम लोगों का पता है क्या है, तुम लोगों का दिमाग गोबर चढ़ने गया। जब मैं तुमको कह रहा हूँ कि जब तुमको खुद समझने की सलाहियत नहीं है, वो तुमको हवाले दे रहा, तुम समझ नहीं सकते, उसकी बात पर अमल कर रहे हो, हवाला पढ़ के खुद तहकीक नहीं कर सकते हो, तुमको अस्मो रिजाल के बारे में नहीं मालूम है, तुमको किताब के बारे में नहीं मालूम है कि वो किताब सही पेश कर रहा है या गलत पेश कर रहा है, वो कहाँ से छपी है, किधर से छपी है। मैं कैसे समझूं तुम सही पेश कर रहे गलत पेश कर रहे? तो इजमा को पढ़ना जाके जाहिल, उसको इजमा पेश कर तो रहा हूँ, जाके फुकहा की किताब को पढ़ना। मुझे ये भी मालूम नहीं कि तुम सही बोल रहे, मुझे वो भी मालूम नहीं कि वो सही बोल रहे। अरे सुनो, मैं कुरान को देखूंगा ना, कुरान हदीस को देखूंगा ना, मेरे मस्जिद में आज कुरान रखे हुआ है, हदीस है, जिसको हदीस से सब सही बोलते हैं, मैं उसकी मानूंगा कि तुम्हारी वही बात आई ना, फिर घूम फिर के सुनो तो फिर वो घूम फिर के कुरान हदीस की सीधी बात करो ना। सुनो बात समझ रहे क्या हजरत? ये बताओ, बात कुरान पे आती, हर मस्जिद में कुरान है, तर्जुमे से हर मस्जिद में कुरान है। अच्छा ये बताओ, ये बताओ कि बुखारी शरीफ की किताबें शिया भी छापते हैं अपने मकतब में, ठीक है, और बुखारी शरीफ की शिया छापते अपने मकतब में, और शिया उसके अंदर तहरीफ करते। ध्यान से सुनना बात को,
اور شیعہ تم کو ہاں جب بخاری کی حدیث دکھائے گا کہ دیکھو یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد افضلیت میں سب سے افضل حضرت علی ہیں، تو تمہارے پاس وہ حدیث آئی بخاری کی اور تم نے اس کو دیکھا، تو تم اس کی تحقیق کرو گے نا یہ کہاں سے چھپی ہے، یہ کدھر سے چھپی ہے، یہ کتاب صحیح ہے ہاں صحیح بات ہے نا. یا نہیں ہے. تو اب وہ بھی بخاری تم کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے. تو تم کو خود علم نہیں ہے کہ میں یہ دیکھوں تحقیق کر پاؤں کہ یہ کتاب کہاں سے چھپی ہے، یہ کس نے لکھی ہے. تو تم جب خود تحقیق نہیں کر پا رہے ہو اور وہ تم کو بخاری دے رہا ہے تو تم اس پر آنکھ بن کر کے اعتماد کرو. جب میں تم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم فقہا کی کتابوں کو پڑھو، محدثین کی کتابوں کو پڑھو، ائمہ کی کتابوں کو پڑھو نا، میں تم کو اپنا قول تھوڑی پیش کر رہا ہوں. اب حضرت تو مجھے پھر یہ بات بتاؤ، وہی آ رہی نا، اب یہ مجھے بھی یہ تو بتاؤ، فقہاء کے علماء کی باتوں کی پیش کرتے نا. اب تو شیعہ بھی تو کر رہا ہے علماء وہی اب میں چیز. تمہاری بات کیسے یقین کروں؟ تو تیری تم صحیح بول رہے، میں کیسی بات کو یقین کروں کہ تم بول رہے کہ حضرت علماء فقہاء نے حضرت بولے لے کے وسیلے سے دعا مانگو. او حضرت وہ ظاہر زمانہ ہے، ہاں چھوڑ دیں گے نہیں، چھوڑ دو، اس کے چکر میں مت پڑو، اس کی دماغ ہاں میں تو مت پڑھو میرے چکر میں. سنو وہ سنو جو کتاب ہے نا، جو نوٹس وہ سنو ارے سنو جاہل سنو کیسے زیر حضرت منظر پہ آنے والی ہو. سنو 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 ارے سنو سنو وہ سنو سنو وسیلے کا جو شرک کا ٹاپک ہے نا، سنو یہ سنو 15-20 تیرے دن میں جیسے انشاءاللہ پورے 40 میں رہے گا. اچھا آپ سنو کو ایک وہ منٹ نوٹس سنو، آپ کے ہاتھوں میں ایک مل جائیں جواب گے. دینے دو، ایک تیرے جواب دینے دو، جیسے کو بادمان ارے ایک مل جواب جائیں دینے گے، دو، سب دلیل مل جائیں گے آپ کو. ایک جواب دینے دو، ایک یہ تو آپ جواب اتنا دینے دو، لمبا کھینچتے ہیں نا، ایک ادھر جواب ادھر گھسنا، ایک تو جواب ادھر دینے ادھر دو، گھسنا ہم کو بھی آتا ہے. ایک جواب ارے دینے تیرے دو. جیسے جاہل کو مجمع میں جلیل کر سکتے تھے، کو عربی نہیں آتے، عربی کی گرامر معلوم ارے نہیں تھی، بھیا سنو سنو علماء سے سنو ٹکرا رہا تو، تم نے علماء علماء کو سے خدا ٹکرا بنا رہا کے تو. بیٹھے ہوئے ہیں. ارے تو ارے سنو تمہارے معاذ خدا اللہ تم کو استغفر مبارک اللہ اللہ، سے. سنو وہ سنو تیرا سنو عقیدہ ہے، وہ سنو 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 باطل، سنو سمجھا؟ دیکھو دیکھو ہوتا کیا ہے میں بتاتا ہوں کہ یہی حال محدثین کے زمانے میں ہوتا تھا کہ محدثین کو چھوڑ کے لوگ جاہلوں کی بات پر عمل کرتے تھے ہاں نا. جاہلوں کی بات پہ عمل تو کرتے، صحیح بات ہے. محدثین نے صاف یہ کہہ دیا کہ اگر جاہل کے پاس ایک دلیل ہو اور تمہارے پاس 100 ہاں دلیل ہو تو جاہل تمہاری ایک دلیل سے 100 دلیل کو رد کرے گا. دھیان سے رد سننا. کر دیں گے، صحیح بات ہے، تو صحیح اب بات، جس کی قسمت میں پخانا چاٹنا لکھ گیا ہے تو اس کی قسمت میں اچھی صحیح چیزیں بات ہے. نہیں ہے، وہ پخانے کو ہی اجی غذا سمجھے گا. پسند ہے، صحیح بات ہے. سمجھے؟ تو جی یہ جی اہل حدیث کا پخانا چاٹے گا اور کچھ نہیں کرے گا، صحیح. یہ کبھی حق پر آئے گا ہی نہیں. اتنے اس کو پیار سے آئے نہیں سمجھایا. حضرت، ارے حضرت ان کا کاروبار بھی ویسے ہی رہا ہے پورا، وہ میں کو سب معلوم ہے. دیکھیے میں وہی بتا چلو رہا ہوں ٹھیک ہے، نا، وہی بتا رہا ٹھیک ہے، ہوں جان دو، کہ غلطی یہ سدھرنے غلطی والے نہیں، چھوڑو اس کا وشے غلطی کلوز کرو. سنو غلطی کیا جان ہے، دو غلطی کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے دوست احباب کو شروع سے پڑھایا نہیں. جی ٹھیک ہے، ہم نے چھوڑ دیا اس کو اس کے حال پر. تو جب جی. حال چھوڑو گے نا تو ایسے ہی نتیجے نکلیں گے. اب یہ پھر جاہل اب کا کیا بچہ کریں کہہ پھر؟ رہا ہے، یہ جاہل کا بچہ بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ بھی تو قرآن حدیث سے دلیل دے. اب جاہل کے بچے قرآن حدیث سے دلیل تو شیعہ بھی دے رہا ہے، قرآن حدیث سے دے دلیل تو رہے دیوبندی اجماع بھی کو دے دیکھا رہا ہے. جائیں گا نا، بڑے بڑے علماء کا. جی. یہ کیا بولوں میں، کیا بتاؤں. جانے تو گمراہی لکھے، جس کو بولتے ہیں وہ شیطان نے گمراہ کر دی، لیکن کوئی رائے نہیں آنے والے حضرت، جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دیا نا، اتنے سدھریں پیار گے. سے سمجھایا میں جی. کہ کسی کے بھی صحیح دماغ میں بات بات ہے، سمجھ میں آ جائے. صحیح بات ہے لیکن حضرت. جس ارے وہ کی سدھرنے قسمت میں والا نہیں لکھا ہو. ہے نا، کیا بولو نہیں، گے، صحیح بات ہے. فنڈنگ آتی ہوگی اس کو وہابیوں سے، اس لیے وہابیوں کا سپورٹ کر رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے، رکھیے. نہیں حضرت، نہیں وہ کام کو ایک جگہ کام پہ، وہ پاور پلانٹ کے اندر کام کو ہے، وہ ایسا نہیں ہے گمراہ ہو جائے لے، بولے تو رائے راک بھی نہیں ہو. چلیے ٹھیک ہے، رکھیے. دعا میں ہاں جی حضرت، ریکارڈنگ بھیج دو حضرت دونوں.